بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ پینڈورا لیک کے سامنے آنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اس کی اعلیٰ سطح پہ تحقیقات کی جائے گی۔ پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم کے تحت ایک سیل بنایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد صاحب نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ اس میں ایف آئی اے، ایف پی آر اور نیب کے لوگ شامل ہوں گے۔ اگر اس میں کوئی اثاثے ڈکلیئر نہیں ہوں گے تو اس کے اوپر ایف بی آر تحقیقات کرے گا۔ اگر منی لانڈرنگ کی چیز ہوگی تو اس کے اوپر جو ایف آئی اے ہے اس کی تحقیقات ہوگی، اور جو پبلک فگرز ہیں ان کی جو چیزیں ہیں وہ نیب اس کی تحقیقات کرے گا۔ اور یہ جو 700 سے زائد پاکستانی ہیں، ان تمام افراد سے اس معاملے پہ تحقیقات ہوگی اور اس کی نگرانی براہ راست وزیر اعظم عمران خان صاحب کریں گے۔ تو ایک یہ معاملہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن حکومتی شخصیات ہیں ان کے نام یا ایسے افراد جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور وہ کوئی عہدہ رکھتے ہیں یا حکومت میں کسی نہ کسی صورت میں شامل ہیں، تو کیا وہ اپنے عہدے چھوڑ کر اس تحقیقات میں شامل ہوں گے یا وہ اپنے جو پورٹ فولیو ہیں کنٹینیو کرتے رہیں گے؟ مثال کے طور پر شوکت ترین صاحب، جن کی 4 کمپنیوں کا ذکر ہے، اسی طریقے سے مون صلاحی صاحب، ان کی جو چیزیں ہیں ان کا ذکر ہے، خسرو بختیار صاحب جن کے حوالے سے جو شوگر اسکینڈل ہے اس میں بھی بہت نام آتے رہے، لیکن ان کی جو فیملی ممبرز ہیں ان کی بھی جو کمپنیز ہیں ان کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے علی جہانگیر صدیقی صاحب، ان کا ذکر ہے، نیشنل بینک کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کا ذکر ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو ابھی اعلیٰ حکومتی عہدوں پر موجود ہیں، کیا وہ اسی طرح برقرار رہیں گے یا وہ اس وقت تک جب تک تحقیقات ہو رہی ہیں وہ اپنے عہدوں سے ہٹ جائیں گے؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں مل جائے گا۔ وزیر قانون کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس کے ٹی او آرز بنائیں۔ ساتھ ساتھ اس میں بعض جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں، جس طرح جنرل شفاعت کا نام ہے جو پرویز مشرف صاحب کے سابق ملٹری سیکرٹری رہے ہیں، میجر جنرل نصرت نعیم صاحب کا نام ہے، ایئر مارشل عباس خٹک صاحب کا نام ہے، راجہ نادر پرویز صاحب کا نام ہے، تو یہ جو افسران ہیں ان کے حوالے سے تو یہ جو پوری تحقیقات ہے اس میں یہ 700 لوگوں کے اندر چونکہ ان کے نام بھی ہے تو ان سے بھی تحقیقات ہوگی یا ان کی تحقیقات جو ہے وہ کسی اور پلیٹ فارم پر ہوگی؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب آنا باقی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج کے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اون عباس بپی صاحب، مجھے جوائن کر رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی محترمہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ، اور میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر شہادت ایوان صاحب۔ اون عباس صاحب بہت شکریہ، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ وقت دینے کا۔ اب یہ اس کا جو فریم ورک ہے، جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تحقیقات کی، وہ کیا ہے؟ دائرہ کار کیا ہے؟ اس کا کوئی ٹائم فریم طے پایا ہے نہیں ہے؟ اس کی اگر تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے پاس ہوں تو وہ شیئر کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے حافظ صاحب خود فرمایا کہ الحمدللہ جیسے ہی کل یہ رپورٹ آئی تھی، کل رات کو 9:30 بجے آئی تھی، آپ نے دیکھا کہ 10 ساڑھے 10 کے قریب پرائم منسٹر صاحب نے خود اس کے اوپر جو ٹویٹ کیا تھا وہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی پبلک سٹیٹمنٹ تھی، جس میں یہ کلیئر کیا گیا کہ جی ہم اس کو بغیر انویسٹیگیشن کے نہیں چھوڑیں گے۔ اب اس میں 2 چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ پہلے تو مجھے اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کل ایک پورا دن چہ مگوئی میں گزرتا رہا اور ایک فیک خبریں چلائی گئیں پرائم منسٹر کے حوالے سے یا زمان پاک کے حوالے سے، اس کا رات کو 9:30 بجے قلعہ کما ہو گیا، اور کم از کم مخالفین کو وہ جو مڈ سلنگنگ کا موقع ملنے جا رہا تھا یا وہ سوچ رہے تھے کہ شاید ایسی اپرچونٹی ملے گی، وہ نہ مل پائی، نمبر 1۔ اور نمبر 2، یہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی کو بہت بڑے ایشوز یا گورنمنٹ کو ایشوز نکلیں گے، اس میں سے بھی کوئی چیز خاص نکل نہ پائی۔ آپ جیسے خود اپنے انٹرویو پہ فرما رہے تھے کہ جن وزراء کے اوپر یہ بات چل رہی ہے ان میں سے میجورٹی تو آلریڈی اپنے اس کو ایسٹس کو ڈکلیئر کر چکے ہیں، اپنے جو ریٹرنز ہیں ان کے اس میں ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے آج اصولی یہ فیصلہ کیا کہ جو پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن ہے، پی ایم آئی سی جس کو کہتے ہوتے ہیں، ان کے جو ہیڈ ہیں ان کے نیچے ایک سیل بنایا جائے گا، اور وہ سیل ان تمام 700 افراد کو انویسٹیگیٹ کرے گا، ان کے کیسز کو دیکھے گا۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جو پینڈورا باکس ہے یہ کوئی لیگل یہ نہیں تھی کہ کیس چلانے ہیں، انہوں نے صرف ایک انفارمیشن پرووائڈ کر دی کہ ان اشخاص نے آف شور کمپنیاں بنائی۔ یہ جو انسپیکشن کمیشن ہے، اس کے سیل ہے، وہ ان 700 لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرے گا، دیکھے گا کہ ان میں سے کن کن اشخاص کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ تو جو میجر کیٹیگری ہم نے ڈیفائن کی ہیں وہ بڑی سمپل ہے۔ ایک تو جنہوں نے کمپنیز کو بنایا اور اس کو ڈکلیئر کیا، اور باہر جو ٹیکس بینیفٹس ہوتے ہیں باہر کے ممالک میں
उसको लेने के लिए बनाया, लेकिन वो लीगल है और FVR के डेटाबेस में रजिस्टर्ड है, वो तो क्लियर हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी ने इन ऑफशोर कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है, या यहां कोई पैसा कमाया और उसको हाइड करके छुपा के पाकिस्तान से उसको बाहर छुपाने के लिए ऑफशोर कंपनी बनाई, तो वो केसेस फिर वो FIA के हवाले कर दिए जाएंगे। किसी ने ठेकों में या किसी और कमीशन में पैसा कमाया और इन ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, वो चला जाएगा ऑटोमेटिकली नैब के पास। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर टैक्स एविजन के लिए, पाकिस्तान में टैक्स से बचने के लिए किसी ने ये ऑफशोर कंपनियां बनाई, तो वो FVR के हवाले कर दी जाएगी। तो ये 4 मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें फॉलो आउट होगा। टाइम फ्रेम देना अभी मुश्किल है, क्योंकि 700 ऐसे अशखास हैं, इसमें मीडिया हाउसेस भी हैं, आपने जर्नैल सबान का जिक्र किया, ब्यूरोक्रेट्स का भी जिक्र किया शायद, और पॉलिटिशियन का, इसमें मीडिया हाउसेस भी हैं। तो ये 700 शोएब शेख साहब का नाम है, मीर शकीलुर रहमान साहब का नाम है, सुल्तान लखानी साहब का नाम है, तमाम मीडिया में जो मेजर मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने, तो इसमें ये साबित करना कि ये तमाम की तमाम इलीगल थी या ये कोई गलत काम है, ये पहला तो इसको वहीं से निकाल लेते हैं कि ऐसा कोई गलत काम ऑन प्राइमा फेशी नहीं है। अब इसको देखेंगे कि इसमें तमाम लोग किस किस कैटेगरी में फॉल करते जाएंगे, उस तरीके से ट्रीट करेंगे ताकि लोगों का एक एतमाद बढ़ सके। कि जैसे पनामा लीक्स आया था तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ये क्लियर ही नहीं कर पा रहे थे कि वो जो उनकी ऑफशोर कंपनियां थी बरमुदा में, नीलसन और नेस्कॉल, कि उसका असल मालिक कौन है, फिर उसको पैसे कैसे भिजवाए। वो कॉन्सेप्ट कम से कम हमारी गवर्नमेंट में, क्योंकि हम एहतसाब की बात करते हैं, कम से कम ये हमें हॉन्ट ना करे और एक हमारा दाग ना साबित हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैलेंटाइन एड्रेस करके प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बेहतरीन वो एक शॉर्टली एक बिल्कुल ये कि जो लोग अब ओहदे पे बैठे हैं, जैसे शौकत तरीन साहब हैं और जो मैंने नाम लिए, मोनिस सलाई साहब हैं, ये अपने ओहदों पे काम करते रहेंगे इसी तरीके से, या अखलाकी तौर पर इन्हें अलहदा हो जाना चाहिए, क्योंकि आप बड़े प्रिंसिपल्ड PTI के वर्कर हैं? हाफिज साहब एक चीज याद रखिए, मैंने कहा ना ये 4 कैटेगरीज, ये अगले जो मेजर है ना हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, इनको तो सबसे पहले ही हम इसमें से ना फिल्ट्रेशन में से गुजार देंगे। अगर दे हैव डिक्लेयर्ड देयर एसेट्स और ये लीगल है और इसमें कोई वो बदयांती शामिल नहीं है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। और जैसे आपने तरीन साहब का बार बार नाम लिया, तरीन साहब ने कल, ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने कहा कि हजूर 2015 में जब ये कंपनी बनाई थी तो उसका मकसद था कि सिल्क बैंक में बायस इन्वेस्टमेंट आ सके। कराची में हालात खराब हुए तो इन्वेस्टर चला गया, 1 रुपए की ट्रांजेक्शन नहीं हो सकी। अब ये वो चीज है जो डिक्लेयर्ड है और एट द पेपर्स रिकॉर्ड्स के ऊपर है। अगर ये साबित है तो उसको स्टेप डाउन करने के लिए मुझे कोई खास वजह नजर नहीं आती। इसी तरह अलीम खान ने भी कहा दिया कि जी मैंने 2008 में डिक्लेयर कर दिया था और इलेक्शन कमीशन के कागजों में बहुत ये चीज मौजूद है। तो अगर इस तरह का बड़ा क्लीन स्लेट एक किस्म की स्टेटमेंट लोगों की मौजूद है, तो आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी ऐसा क्यों किया जाए। सो जहां पे कोई चीज पाई जाएगी तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक्शन लेंगे, ये उनका डिस्क्रेशन और प्रेरोगेटिव है। जी चलें, शाइस्ता साहब आपने बड़े तहम्मुल से और अब्बास साहब की सारी बातें उन्होंने ब्रीफ किया कि क्या है, और उन्होंने कहा कि अगर एक चीज़ नज़र आ रही है कि उनका कोई कसूर नहीं है, लीगल हैं चीज़ें, तो क्लीन अगर चिट मिली हुई है, स्लेट साफ है, तो फिर उनको स्टेप डाउन करने की ज़रूरत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुक्रिया तारिक साहब फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए, मैं तो आज उन तमाम लोगों को जो इनके लेफ्ट राइट बैठे ना हुकूमत के, उनको मुबारकबाद देती हूँ। मैं आज कह रही हूँ वो सब क्लियर हैं, क्योंकि आपको पता है ये बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी आपने मेरे भाई की बातें सुनी थी ना कि प्राइम मिनिस्टर की इंस्पेक्शन कमेटी जो है वो बन गई है और वो 700 अफराद को फिल्टर करेगी। अब आप भी देख लें तारिक साहब, 700 अफराद को फिल्टर करते मेरा ख्याल 7 साल भी अगर ये पूरे कर गए ना, तो मेरी बात मान लीजिएगा कि कुछ नहीं होना। ये कमीशंस बनाते रहे, इनका फेवरेट काम है। ये कमेटियां बनाते हैं, ये कमीशंस बनाते हैं, फिर उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, फिर उनको अंडर द कार्पेट कर देते हैं और लोगों से तालियां बजवाते हैं कि हम ही मुनसिफ, हम ही मुजरिम तलाश करेंगे और हम ही फैसला सुना देंगे। ये वो लोग हैं। जितनी धूम धड़के से ये मियां नवाज शरीफ के लिए गए थे, मेरी बात सुने, उसमें भी 400 लोग थे। एक नवाज शरीफ के बाद किसको इन्होंने छाना बीना, किसको इन्होंने देखा? और नवाज शरीफ भी पनामा में नहीं डिस्क्वालीफाई हुए, वो कामे में डिस्क्वालीफाई हुए हैं। उन पे कमीशन बना और कमीशन भी ऐसा बना जो आज तक हिस्ट्री में नहीं बना, कि उसके ऊपर एक जज सुपरवाइज करने के लिए बिठाया गया और उसको टाइम बार किया गया। अब मेरा भाई कह रहा है कि अभी टाइम का कुछ पता नहीं है। देखें, ये
جب سے آئیں یہ ہائی مورل گراؤنڈ لیتے رہیں اور اپنے آپ کو صادق اور امین کہتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ جس کے خلاف بھی انسپیکشن ہو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے، دوران تفتیش اس کو پوزیشن پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ تمام لوگ جن کے آپ نے نام لیے، خسرو بختیار، مؤنس الہی، اسٹیٹ بینک کے شوکت ترین اور عارف، مطلب وہ میں جتنے میرے پاس تو اب نام بھی ذہن میں اتنی نہیں آ رہے، وہ سب لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، وہ سب اپنے کام کریں گے، انفلوئنس کریں گے، اور ویسے بھی ان کے پیپرز میں ہوگا کہ وہ ڈکلیئر، علیم خان نے کہہ دیا میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، فلانے نے کہہ دیا میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو بھائی وہ پاگل تو نہیں تھے جنہوں نے یہ ساری رپورٹس نکالی، اتنی محنت کے بعد یہ کام کیا۔ تو اور دوسری بات، آپ میری بات سنیں، ان کا کام صرف اور صرف اپوزیشن کی پگڑیاں اچھالنا ہے، بہتان لگانا ہے، کام انہوں نے کچھ نہیں کرنے۔ آپ مجھے ایک یہ بات بتائیں کہ ان کی عقل، مطلب اس میں کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے کہ جو یہ لوگ ہیں، پہلے تو وہ سائٹ پہ ہونا، جو عمران نیازی صاحب کنٹینر پہ کہتے تھے، پہلے تو وہ لوگ سائٹ پہ ہوں، اور پھر مجھے بتائیں ایک سمپل طریقہ ہے کچھ لوگوں کا کہ ویدر ان کے جو ہے الیکشن کمیشن میں بھی، ایف بی آر میں بھی ڈکلیئرڈ ہیں کہ نہیں ہے، ہاں یا نہ، یہ تو وہ بتا سکتے ہیں نا فوراً کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں۔ اور آپ میری بات سنیں، ان کو جب کچھ نہیں ملا نا، کچھ نہیں ہوا، اور ان کی امیدوں پہ پانی پڑا کہ نواز شریف، تو آپ یہ دیکھیں جو فیک نیوز جو یہ آپ لوگوں کو اور چینلز کو کہتے ہیں، وہ فیک نیوز حکومتی ٹی وی چینل سے جنید صفدر کے لیے چلی، ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ پھر ان کے منسٹرز اور وہ جو شہباز گل صاحب ہیں وہ آ گئے کہاں سے۔ آپ مجھے بتائیں کبھی یہ ایک بندے کو اپنے بچانے کو، لاڈلے کو، اس کو ایک ایوان سے اٹھاتے ہیں اور دوسرے ایوان میں لے جاتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پورا نہیں اترتا۔ ان کی اپنے کیسز 7 سال سے چل رہے ہیں، اس پہ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کا خیال ہے کہ ان کا یہ جو کمیشن بنا ہے اس میں سے کچھ نکلے گا؟ کچھ نہیں نکلے گا۔ انہوں نے نہ کیا ہے نہ کریں گے، انہوں نے نہ کیا ہے کچھ نہ یہ کریں گے، نہ کسی کمیشن سے ابھی تک کچھ رپورٹ سے نکلا ہے کچھ۔ ٹھیک ہے، فیک نیوز والی بات آنا عباس صاحب سے کروں گا، مگر شہادت ایوان صاحب پہلے اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں گے، جب چیزیں ہوئی ہیں گورنمنٹ کے لیے تحقیقاتی بنا رہے ہیں، ہم اس کی تحقیقات کریں گے ایف بی آر، ایف آئی اے، نیب کے ذریعے۔ دیکھیں طارق صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک نیوز نہیں ہے بلکہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے، جس میں بڑے نامی گرامی چیمہ صاحب جیسے، دورانی صاحب جیسے، اور اس میں آلموسٹ 600 جرنلسٹ جو ہیں 117 کنٹریز کے انوالو ہیں، تو یہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے، اور ڈیفینیٹلی اگر اس قسم کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو گورنمنٹ کو اس کو دیکھنا چاہیے، یہ نیوز نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے میں ایگری کرتا ہوں ایک لحاظ سے اپنا اون عباس صاحب سے، کہ اس کے اوپر حکومت دیکھے گی، ایف بی آر دیکھے گی، نیب دیکھے گی، ایف آئی اے دیکھے گی، ان لوگوں کو انکوائری ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی، اس کے بعد جا کے پتہ چلے گا، کیونکہ یہ کمپنیاں لیگل بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر جس طریقے سے چند لوگوں نے کل کہا کہ ہم نے تو یہ چیزیں کمپنی بند کر دی ہیں، یہ چیزیں باقاعدہ ہماری ڈکلیئرڈ ہیں، ٹرانزیکشن کے علاوہ اگر کسی کی کوئی چیز ڈکلیئرڈ ہے یا کہیں پہ کوئی، اصل بات یہ اس کا مقصد یہ ہے، کمپنی بنی ہے اور یہاں کہیں جس طرح تو میں گزارش وہی کر رہا ہوں کہ سر، گزارش میں وہی کر دیکھیں اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ آف شور کمپنی ایویژن آف ٹیکس کے لیے بنی گئی ہے اور کہیں مس ڈکلریشن ہوئی ہے، کہیں کسی چیز کو جو ہے کسی چیز کو چھپایا گیا ہے، کہیں ڈسکلوز نہیں کیا گیا، تو ہمارے ملک کی قوانین کے تحت تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں کا جو ہے محاسبہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی جسٹیفائی پائے گا، زبانی کلامی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی، جس طریقے سے پارلیمنٹیرینز ہیں، اگر کسی نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہوگا تو اس نے اپنے ایسٹس میں ظاہر کیا ہوگا، الیکشن تو 2013 میں پہلے ہو چکے، اس کے اندر وہ چیز ہوگی، کسی نے اگر کوئی ریٹرن بھرے ہوئے ہیں کمپنی ظاہر کی ہوگی تو ایف بی آر کے اندر ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں نا بالکل سمپل فارمولا ہے، ان کے اٹھا لیں، اگر ڈکلیئر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس میں یہ چیزیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے سے شائستہ صاحبہ بجا طور پہ کہہ رہی ہیں کہ جس طریقے سے حکومت نے اپنے لیے اخلاقی ایک پیمانہ بنایا ہے کہ جس آدمی ان کے پبلک آفس ہولڈر کے اوپر اگر کوئی ایلیگیشن ہوا، جس طریقے سے زلفی بخاری صاحب پہ رنگ روڈ کا مسئلہ ہوا، انہوں نے منسٹری چھوڑ دی، تو میں اب دیکھنا خالی یہ ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو سب سے بڑا نزلہ
गिरेगा वो शौकत तरीन साहब पे, पंजाब पे क्योंकि शौकत तरीन साहब जो हैं उनका इलेक्शन नज़दीक है, तो बाकी जो दोस्त हैं जो बाकी को रिज़ाइन कर भी लेंगे तो जुल्फी साहब की तरह चंद दिनों बाद क्लियर होके वो आ सकते हैं। लेकिन बाद ये जिनका इलेक्शन होना है, जिनको आना है, जिनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, उनके लिए तरीन साहब के लिए जो है मुल्की मईशत कहाँ चल रही है। और मैं समझता हूँ कि ढूंढे से भी ओन अब्बास साहब को जो है वज़ीर ख़जाना मिलना नहीं है। असल तो कहते हैं ओन अब्बास साहब को बनाया वज़ीर ख़जाना, ये बनाया जितनी हमें खुशी इकोनॉमी के ऊपर होगी। इन्होंने डिफेंड किया यंग है, आदमी है, बाकी लोग तो एक भाग यंग जाते हैं। आदमी है, एनर्जेटिक हैं, लेकिन मसला ये है कि इस मुल्क के लिए मुश्किलात दर मुश्किलात हैं। अच्छा ओन अब्बास साहब, जो शाइस्ता साहिबा ने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट, वो फेक न्यूज़ की, देखें बात हो रही है हमारी, चूँकि मीटिंग्स होती नहीं है, मैं खुद उन मीटिंग में था, बल्कि एक कमेटी में तो आप भी तशरीफ़ फरमा थे, जो सेनेट की कमेटी जिसमें इंफॉर्मेशन से रिलेटेड फेक न्यूज़ पे बात हुई। हमने गवर्नमेंट से ये भी कहा कि भाई आप इसकी लीगल डेफिनेशन दें फेक न्यूज़ की, और हम इसके ऊपर लेजिस्लेशन करने के लिए, काम करने के लिए तैयार हैं सारे मीडिया हाउसेस। कल आप पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल से, सरकारी टीवी आपको पता है कि कितनी क्रेडिबल दुनिया भर के अंदर माना जाता है, वहाँ एक खबर जारी होती है और उसको फिर जो है ना वो वज़ीर आज़म के तर्जुमान और फिर जो आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो उसको बग़ैर किसी तहकीक के ट्वीट कर रहे होते हैं। ये क्या है? इस पर कम अज़ कम माजरत तो करनी चाहिए कि यार ये हमसे गलती हुई है, ये कोई चीज़ हुई है, बल्कि उसको डिफेंड करके और उसकी लेफ़्ट राइट कोई और जस्टिफिकेशन देना। अब सर पहले तो हम इस पे एग्री कर लेते हैं कि फेक न्यूज़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट की तरफ से आए जो कि डैमेजिंग हो किसी लीडर के लिए या पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वो एक गलत काम है। इस पे तो हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए। फेक न्यूज़ के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो फवाद चौधरी साहब को टास्क दिया था बड़ा क्लियर था, क्योंकि ये लोगों को डैमेजिंग करता, विदाउट एनी सोर्स आप कर देते हैं तो उसमें डेफेमेशन के लॉज बनने चाहिए, ये भी बड़ा क्लियर था। अब ये जो कल इंसिडेंट हुआ है, हमने तो, मैं तो खुद कह रहा हूँ, हम खुद विक्टिम है कि कल 9:30 बजे जिस वक्त ये पेंडोरा ने अनाउंस होना था, उससे तकरीबन कुछ 4 घंटे पहले 2 ज़मान पार के हवाले से खबरें चलनी शुरू हो अच्छा गई। वो किसने चलाई? ओन अब्बास साहब चले, हम आपस में, वो कहाँ चली? मुझे ये नहीं पता, मैं आपको अर्ज करूं, मुझे नहीं अंदाजा, मैं किसी जगह से, देखें वो कल जो है कहीं से भी चली, ICIJ ने कहा कि ये खबर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अच्छा मजे की बात सुने, चली उसका जिन साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेट किया है पाकिस्तान के ऊपर, मैं 9:30 बजे उनको देख रहा था तो उनसे पूछा गया कि आपका 2 ज़मान बार के बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा जी हाँ जी वो हम देख रहे थे, वो किसी और का नाम आ रहा था 2 ज़मान पाक के हवाले से, वैसे तो वो क्लियर हो गया, लेकिन एक स्पोक्स पर्सन ने क्योंकि 4 घंटे पहले प्रीएम्प्टिवली उसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दे दी, तो लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो भाई अगर गड़बड़ है तो आप इन्वेस्टिगेट करके निकाल देते कल रात को, आप नहीं निकाल सके, कुछ नहीं है, सो एक स्पोक्स पर्सन की स्टेटमेंट देने को उन्होंने कहा जी कोई गड़बड़ जरूर लग रही है। सो ये जो मैलाफाइडी इंटेंशंस हैं ये हर कॉर्नर से आती हैं और वो किसी को भी डैमेज कर सकती हैं। मैंने पीटीवी की खबर देखी नहीं है और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो सोशल मीडिया के ऊपर बना के वो फ्लोट की गई, लेकिन अगर पीटीवी ने ऐसा किया तो ये डैमेजिंग है और इसको तदारुद होना चाहिए। आई पर्सनली फील दैट वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, नॉट दैट कि नून लीग चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे पीटीआई हो, देखिए हम समझते हैं कि जो लीडर्स और पॉलिटिकल लोग हैं ये सबसे ज्यादा डैमेज होते हैं फेक न्यूज से, और पाकिस्तान में कोई तबका नहीं हो सकता, हर बंदे के पास कोई ना कोई तदारुक का तरीका है सिवाय इस पॉलिटिकल लोगों के अलावा। और अगर वो मेरे लिए डैमेज है, मेरे लीडर के लिए डैमेज है, तो मैं समझता हूं उतना ही किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो उसको मैं कंडेम जरूर करूंगा। इसको एक तो वो खबर चली, दूसरा फिर शहबाज गिल साहब और फवाद चौधरी साहब ने वो ट्वीट किए, पहले यही कहा कि वो जाली खबर है, जब लोगों ने क्लिप शेयर कर दी है कि जनाब ये लें ये तो जाली नहीं है, तो उसके बाद तो फिर ये कम अज़ कम मेरा सवाल ये है कि माजरत तो करनी चाहिए स्टेट लेवल के ऊपर, आप एक टेलीविजन पे कल को कोई और बड़ा ब्लंडर हो जाए, तहकीकात होनी चाहिए। मैंने वो खबर देखी नहीं है, लेकिन मैंने कह रहा हूं कि ये डैमेजिंग है हर तबके के लिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अब इसके अलावा तो फवाद भाई या डॉक्टर शहबाज साहब खुद अपना जवाब देख सकते उन्होंने क्या किया या नहीं किया, बट मेरा पॉइंट ऑफ ये तो हमारे लिए भी कल बहुत डैमेज था। यकीन जानिए कल 5 बजे से लेकर 9:30 तक हम खुद परेशान थे, पता नहीं कौन सी ज़मान पार्क और कौन फरीदुद्दीन और क्या, और रात को जब 9:35-40 में मैंने उस शख्स को देखा बात करते हुए, मैं सिर्फ कह के ही मार सकता था नमाज पढ़ने, नफल अदा करने के बाद। ठीक है, मैं वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो शाइस्ता साहिबा से, शाइस्ता साहिबा वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो आपसे जवाब लेते हैं इस पे। अच्छा वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर ओन अब्बास साहब, शहादत ऐवान साहब, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा मेरे मेहमान हैं। शाइस्ता साहबा, ब्रेक पे जाने से कबल फेक न्यूज़ जो कल पाकिस्तान टेलीविज़न पे जो सरकारी टीवी पे नशर हुई, ओन अब्बास साहब कह रहे थे कि उन्होंने देखी नहीं है, लेकिन ये फेक है तो सब नहीं, मैं डैमेजिंग है सबके लिए। मेरा देखें,
ऑन साहब उन वेरी फ्यू ऑनरेबल मेंबर्स में से हैं जो बात सही कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको बता दूं कि वो जो चली थी ना, जिसकी ये कह रहे हैं कि वो मैंने शुक्राने के नफिल पढ़े और मैंने ये किया वो किया, वो ज़मान टू ज़मान पाक का ही एड्रेस है, और वो बात उसकी क्लेरिफिकेशन ये आ रही है कि जी एक फ्रंट गेट है और एक बैक गेट है, और एक जो बैक गेट है उस पे उन साहब का घर है और जो फ्रंट गेट है उस पे न्याजी साहब का घर है और लंबी चौड़ी, बट आई फील कि दैट ऑल्सो शुड बी लुक्ड इनटू। वो कोई ऐसी बात, हमें क्या फर्क पड़ता है, अगर सब क्लियर है तो चलो उसकी भी तहकीक हो जाए और उसको क्लियर कर दें, बट वो उसमें ये है कि वो बैक गेट है और फ्रंट गेट है। अब देखें, मैं एक बात फेक न्यूज़ की करूं, ये हुकूमती चैनल है जिसको क्रेडिटेबल होना चाहिए। मुझे हैरान कुन है कि मेरे भाई ने कहा कि सोशल मीडिया का एक क्लिप उन्होंने उठा के चलाया, तो क्या टीवी चैनल्स हुकूमती सोशल मीडिया से क्लिप्स उठाते हैं? क्या उन्होंने कोई तहकीक नहीं की? उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जुनैद सफदर की 5 ऑफशोर कंपनियां हैं, और इनको देखम देख एक और टीवी चैनल मैं नाम ले लेती हूँ, जो हर वक्त वो भी इस कोशिश में होते हैं कि हुकूमत के साथ किसी तरह शामिल रहें, वो ARY से भी ये न्यूज़ चलनी शुरू हुई, और उस वक्त शहजाद इकबाल का प्रोग्राम मैं जियो पे देख रही थी, और वहाँ पे उमर चीमा भी बैठे थे और हमारे जुबैर साहब भी बैठे थे, और उनसे डायरेक्ट पूछा गया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है, और उमर चीमा जो इस सारी इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थे, उन्होंने कहा कि ये कैसे चला रहे हैं, कम से कम जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि इंटरेस्टिंगली जो शाइस्ता साहबा जो दूसरा चैनल है जहाँ पे आपने कहा कि खबर नशर हुई, वहाँ पे भी ट्रांसमिशन चल रही थी, और वहाँ एंकर जो थी वो खातून ने शहबाज गिल साहब से कहा कि हमने PTV की खबर कोट करके चला दी है, अल्लाह खैर करे, मरवा नहीं दीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं, खबर पे एतबार करें। तो देखें, लेकिन शहबाज गिल भी मेरा ख्याल छोड़ दें उनको, मैं उनको तो डिस्कस भी नहीं करना चाहती, लेकिन फवाद चौधरी देखें, वो जो कहते हैं ना कि शाह से उसके वो क्या मुहावरा है मेरे शाह से ज्यादा शाह के वफादार, शाह के वफादार, मतलब कि ये सारे शुरू हो गए कहानी करनी। फॉर गॉड सेक, तमाशा बना हुआ है इस मुल्क में, हर बात का एक लिमिट होती है हर चीज की। न देखें, जो तलाशी और चोर 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 का नारा लगाते 4 साल हो गए, ना असेंबली में थकते हैं ना बाहर थकते हैं न्याजी साहब, वो अपनी तलाशी तो दे दें तोशा खानिया के सिलसिले में, पूछ पूछ के उनसे थक गए, वो कोई अपनी तलाशी देने को नहीं तैयार, दूसरों की तलाशी लेने को हम वक्त तैयार होते हैं ना। अपने फॉरेन फंडिंग के केसेस में अगर पूछो तो कहते हैं तुम चोर, भाई तुम तो दे दो अपने अकाउंट्स का कि नहीं। लेकिन देखें, ये इनको कहें कि लोग मर गए हैं इस वक्त, आज बिजली और महंगी हो गई है, हम किन चक्करों में पड़े हुए हैं, हम कमीशंस बना रहे हैं, महंगाई पे तो कोई कमीशन ना बना, पेट्रोल पे कोई कमीशन ना बना, LNG पर जो आपने हमारे लिए केसेस बना दिए नैब के साथ मिलके, आज LNG किस रेट पे आपने खरीदी है। मेरी बात सुने, इनको कहें कि खुदारा इस कौम पे रहम कर दें, और लोगों की मुश्किलात में जो जी, बस मैं आपको एक और बात बताऊं तारिक साहब, जिस चीज का ये प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेता है वो समझें कि तबाह हो जाएगी वो चीज। पाकिस्तान का नोटिस लिया, 3 साल में तबाही की एक कहानी है। अब नोटिस जब जब लिए, महंगाई आज नई तो नहीं हो रही ना, चले महंगाई वाले मतलब ये नोटिस ना ही ले तो इस कौम के लिए बेहतर है, क्योंकि नोटिस लिया नहीं और वो काम तबाह नहीं हुआ, उनको बस कर दें फेक नोटिस न्यूज़ लेना। बल्कि कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी शर्जील मेमन साहब तो वो तो असल में चौकीदार हैं जरदारी साहब के पैसों के, मकसद ये था उनकी बात। इमेजिन देखें, फवाद चौधरी साहब जो हैं और अली डार साहब नवाज शरीफ के, मतलब दोनों का नाम लिया मैं। बात ये है कि हमारे भाई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, फिर हुकूमत से होने के अलावा चकवाल से उनका तलक भी है। तो मैं ये कहता हूँ कि बाज़ दफ़ा वो चौधरियों वाले काम कर जाते हैं, ऐसी बातें कह जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। अगर ये दूसरों की आज इज़्ज़त नहीं करेंगे तो कल आने वाले वक्त में, या आज ही जिस तरीके से मेरी शाइस्ता बहन कह रही हैं, लोग इनकी भी इज़्ज़त नहीं करेंगे। अगर हम अपने ही लोगों के ऊपर कीचड़ उछालते रहेंगे
या अपने ही लोगों को इस तरीके से कहते रहेंगे तो मेरा ख्याल मुल्क और कौम की हमको खिदमत जो है उसमें अंजाम नहीं दे पा रहे होंगे। ऐसी चीज़ों से हमें गुरेज करना चाहिए। बाकी जहाँ तक रह गया कि ये कवानीन बनाने चाहिए, हमारे पास डिफेमेशन के कवानीन हमारे मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन हमारा अदलियाती सिस्टम इस किस्म का है कि एक आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो है फ्री लीगल एड का एक सिस्टम जो है वो चला था। पिछले दिनों भी मैंने कुछ हुकूमती लोगों से सुना कि उसको कुछ आगे बढ़ा रहे थे। इसके ऊपर फारूक नायक साहब ने अच्छा खासा काम किया। अगर कोई आदमी जाए कि इस मीडिया ने, एयरवाई ने, किसी ने मेरे ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ चलाई है और उसको लीगल एड मिले तो कम से कम वो अगर अदालती कार्रवाई करेगा ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। देखें उसमें यह कि जो केस पाकिस्तान से बाहर होता है वहाँ जुर्माने भी हो जाते हैं, सज़ाएँ भी हो जाती हैं। पाकिस्तान में उनकी 1 या 2 हेयरिंग्स भी नहीं होती हैं। लेकिन जो लोग शहबाज शरीफ साहब ने घर जाने का दावा इमरान खान साहब पे किया, इमरान खान साहब ने कर रखे हैं कुछ और केसेस डिफेमेशन के, कोई लेकिन देखें सिस्टम, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का सिस्टम बहुत बेहतर है। अगर आप यहाँ के देखें कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई लोगों को फाइन किए हैं और कई लोगों पे कास्ट इम्पोज की है, लेकिन कोई कोर्ट कचहरी तक पहुँचे तो सही। ठीक। और नवाज साहब ये चोर 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 और फिर तोशा खाने में तलाशी क्यों नहीं देते, ये बड़ा कंटिन्यूसली बात हो रही है 2 हफ्तों से, क्या ऐसी कबाहत है बता दें कि भाई। जी मैं पहले मलिक साहिबा, शाइस्ता मलिक साहिबा के जवाब दे दूं थोड़ा सा ब्रीफ तरीके से। मैंने ये कहा कि अगर ये फेक न्यूज़ है और वो पॉलिटिकल पार्टी या किसी लीडर को डिस्टर्ब करिए तो ये तो वैसे जो हमारा नैरेटिव है उसको सपोर्ट कर रहा है। हम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो बिल ला रहे थे उसमें जो पहला सिस्टम वो फेक न्यूज़ ही था, और चाहे वो सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो उस पर था। तो अगर ये बिल अप्रूव हो चुका होता तो अगर पीटीवी ने, आप एज पर योर क्लेम कि अगर वो उसने किया होता तो सबसे पहले पीटीवी पकड़ा जाता, तो कम से कम हमारे साथ मिलके ये जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल है जो कि ऑब्वियसली मीडिया के नुमाइंदों के साथ डिस्कस हो रहा है, सो वो उसकी तरवीज करता है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने फरमाया कि जी बार बार ये जो है ना चोर चोर की बात करते हैं। 2016 में जब पैनामा लीक्स आया था, हाफिज साहब अपनी मेमोरी को सिर्फ आप रिवाइव करने की कोशिश करें कि बाद 6 महीने तक हम पिटते रह गए कि हजूर पैनामा पेपर को इन्वेस्टिगेट करें। 6 महीने तक अपने अकाउंट तो चले दूर की बात, अपना हिसाब किताब दें भाई आपका पैनामा में नाम आ गया था। जो बाकी अफराद थे उस वक्त मेरे ख्याल पाकिस्तान में 400 लोगों के नाम आए थे, किसी एक के नाम के ऊपर उन्होंने यह हाथ ही रखा था। कम से कम आज ये अप्रिशिएट तो कीजिए कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में 9:30 बजे पेंडोरा लीक्स होता है और 9:45 में प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा। आज मैं बैठ के आपके शो में कह रहा हूं कि जी प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन इन 600 लोगों को रिव्यू करेगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है, लीगल कोर्स नहीं है, और इसमें से जिन जिन पे जो कार्रवाई बनती है वो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट को रेफर कर दिया जाएगा। इससे बड़े और खुला दिल या ट्रांसपेरेंट एक अकाउंटेबिलिटी और कौन सी गवर्नमेंट कर सकती है? तो अप्रिशिएट तो करें कम से कम। जी शाइस्ता साहब वो कह रहे हैं तो कम से कम तारीफ तो कर दें। नहीं करेंगे मैडम, नहीं करेंगी। मैं बिल्कुल अपने भाई को मैं तो अप्रिशिएट हर तरह से कर रही हूँ। काश इसकी मेरे भाई की जो नियत है वो इनकी पार्टी की नियत भी हो जाए, क्योंकि वो बदनीयत पार्टी है। और वहां पे आज तक मुझे कोई ये एक कमीशन का बता दें, किसी एक कमीशन का जिस पे सजा हुई हो या रिजल्ट, आप मुझे वो ब्रॉडशीट का बता दें, आप मुझे एनसीए की शर्मिंदगी खिफत जो हुई उसका बता दें, आप मुझे चीनी का बता दें, आप मुझे दवाइयों का स्कैंडल का बता दें, आप मुझे एलएनजी का बता दें, आप मुझे पेट्रोल का बता दें। मेरे भाई किसी एक का तो बता दो। बताएं कमेटियां बनाई, कमीशन बनाया, निकला क्या बीच में से? आज मैं तारिक साहब, आज मैं आपको यहाँ कह के जा रही हूँ कि यहाँ कुछ नहीं होना, आप इन्वेस्टिगेट ही करते रहेंगे। एक अर्ज करता हूँ जी, एक अर्ज करता हूँ। चले नवाज साहब चैलेंज आ गया। दवाइयाँ शुगर को छोड़ दे, मेरा दिल खून के आंसू, मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं देखता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के केस का फैसला भी नहीं हो रहा, सलमान शहबाज का भी फैसला नहीं हो रहा, वो सारी शहबाज फैमिली के जितने के सारे पेंडिंग पड़े, मैं तो उसमें भी दिल में खून के आंसू रोता है जी। आप दवाइयों को रो रही है इस टाइम, असल जो बड़े चोर बाहर फिर रहे वो नहीं पकड़े जा रहे, वादा मवाफ गवाह मैडम उनके जो है ना वो क्लियर हो चुके हैं। जो कोर्ट्स के बेल ऑर्डर्स में कहा गया है ना, वो आप लोग पढ़ लें, शायद वो आप पढ़ते नहीं है या समझते नहीं है कि फैसलों में क्या कहा गया है कि नैब और हर कुछ यूज हो रहा है आर्म ट्विस्टिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, और कोई करप्शन या मनी कुछ नहीं मिला, और यही लंदन से भी आया फैसला।
لیکن آپ انسسٹ کرتے ہیں توشہ خانہ میں کیوں آپ کرتے رہے انسسٹ. جی میں بتا توشہ خانہ میں بتا دوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ریفرین کر رہا ہوں اس کے اوپر. یہ دیکھیں جو انٹرنیشنل یہ جو کیا کہتے ہیں پریمیئرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک نے 10 لاکھ کا دے دیا, ایک نے 1 لاکھ کا دے دیا, مثال کے طور شاید بھی تھوڑا غور سے سنیں, میں آپ کو پورا پوائنٹ سمجھاؤں گا. کسی نے دے دیا فار ایگزامپل, اور یہ لیگل پروسیس ہوتا ہے کہ وہ تحفہ آیا اور رجسٹرڈ ہوتا ہے. ہم نے ساری عمر حکومت میں نہیں رہنا, اگلے 5 سال ہم کریں گے, اگلے 10 سال کریں گے, کبھی نہ کبھی کسی اور کی تو حکومت آنی ہے. ڈو یو تھنک کہ ہم انلیگل ایسا کام کر کے جا رہے ہیں جو کل کو ہمارے گلے پڑے گا؟ لیکن کیونکہ عزت رکھنی پڑتی ہے لوگوں کی کہ کسی نے کیا دیا, کسی نے کیا دیا, سسٹم میں ہر چیز. ایک چیز اور بتا دوں, بھی بات سنیں. الحمدللہ میں شائستہ بی بی ایک چیز, شائستہ بی بی لیٹ می کلیریفائی, آخری سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اس کے بعد آپ بولیے. شائستہ بی بی پلیز میڈم, ایک ود آل ڈیو ریسپیکٹ, میں آپ کو اپنے دل پہ حلف لے کے دے رہا ہوں, زندگی میں ہر چیز کہہ سکتی ہے آپ عمران خان صاحب کے بارے میں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے کے اوپر کہ ہماری کیوں نہ اس طرح کی معاملات کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. چلیں عمران خان صاحب نے تحفے رکھے, جو تحفے آئے ہیں وہ انہوں نے سارے توشہ خانہ میں جمع کرا دیے ہیں, کچھ کرا دیے جی, اور مطلب آپ چاہتے ہیں اس کی لسٹ نکال کے دیتے کوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھا جی, مطلب توشہ خانہ میں جمع کرا دے, اس کا جو پروسیس انہوں نے فالو کیا جو بھی لیگل ہے. اور میں تو گیلانی صاحب والی سٹیٹمنٹ دینا نہیں چاہ رہا, پھر بلو دا بیلٹ ہو جائے گا کہ یہ معاملات جو ہے نا یہ کبھی چھپ نہیں سکتے, وہ چھپا سکے تھے. مطلب یہ چیزیں لیگلی رجسٹرڈ اپنی جگہ پڑی ہیں, کبھی نہ کبھی نکل جائیں گی, سب کو پتہ چل جائے گا. الحمدللہ آپ کہتے ہیں آپ کے جانے کے بعد نکلیں وہ توشہ خانہ ریفرنس کے اندر. میں کہتا ہوں جو بھی پراپر اس کا پروسیجر ہے وہ فالو ہوا. جی شائستہ صاحب, آپ مجھے بریک لینی ہے, اگر آپ شارٹلی کامنٹ کر دیں. جی طارق صاحب, یہ جو تحفے ہوتے ہیں یہ میرے اور آپ کے اور میرے بھائی کے اور میرے درمیان نہیں ہے, یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہے. اس میں کوئی سیکریسی نہیں ہوتی, یہ اوپن ہوتے ہیں, سب کے سامنے دیے جاتے ہیں. اس میں جو میرے بھائی, اور یہ بھی چھوٹا اور قیمت بڑی اور قیمت زیادہ, خدا کے لیے تحفوں کی نہ ان کی نظر میں کوئی قیمت ہے, نہ کوئی بھی قیمت نہیں دیکھتا, لیکن یہ جمع ہوتے ہیں اور بتایا جاتا ہے. اور اگر سوشل میڈیا کی خبر پک کرتا ہے پی ٹی وی, تو سوشل میڈیا کی خبر تو بہت کچھ کہہ رہی ہے, بہت کچھ کہہ رہی ہے. پھر میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی, میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ دوسروں کے لیے چاہتے ہیں نا, ریاست مدینہ میں احتساب خود سے شروع ہوتا ہے, پہلے اپنے آپ سے. تو پہلے اپنے آپ کو تلاشی کے لیے پیش کریں اور پھر باقی لوگوں کی تلاشی لیں تو حق بجانب ہیں اور ہائی مورل گراؤنڈز ہے, پھر بنتی ہے بات. ٹھیک ہے, چلے میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو شاہد صاحب پھر پروگرام کو جو ہے کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, لاسٹ سیگمنٹ ہے. شہادت ایوان صاحب, احتساب تلاشی, وہ احتساب والے صاحب کے بھی اب میں خیال 3-4 دن رہ گئے, اب کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ بنا لیا ہے ڈرافٹ گورنمنٹ نے کوئی چیزیں. اس دیکھیں یہ ڈرافٹ تو ویسا ہے جیسے آپ کی اتھارٹی کے لیے بل تھا ویسا وہی لے, کہیں ڈھونڈنے سے ملتا نہیں ہے. پی ڈی ایم اے والا وہ ہمارے ساتھ میٹنگ میں, میں کہنا نہیں چاہتا ہوں, عباس صاحب سے علیحدہ بتاؤں گا, میٹنگ میں چیزیں طے کر کے آج فواد صاحب نے پھر یہ والا بل جو ہے نا پی ایم ڈی اے والا بل ہے, ابھی تک کہیں سرفیس پہ نہیں ہے. باقی 2.5 دن رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ چیئرمین صاحب, تاکہ گورنمنٹ کو میں یہ سمجھتا ہوں, میری نظر میں یہ اپریہنشن ہے کہ چیئرمین صاحب اپنا ٹینیور پورا کر جائیں. 2.5 دن آپ ان کے باقی رہ گئے ہیں, اور تاکہ یہ نہ ہو کہ چونکہ چند ایک مسائل اس قسم کے موجودہ گورنمنٹ کے رنگ روڈ کا مسئلہ ہے, جس طریقے سے شائستہ صاحب نے کہا کہ میڈیسنز کا مسئلہ ہے, چینی کا مسئلہ ہے, گندم کو ملا ہے, اور بہت سی کمپلینٹس ہیں. تو یہ نہ ہو کہ جاتے جاتے آخری دن میں, جس طریقے سے سپریم کورٹ نے آخری دن میں 16,000 لوگوں کو فارغ کر دیا, تو آخری دن میں 25-50 کالم نوٹس آ جائیں کہ اگلا چیئرمین کرتا رہے. تو اگر گورنمنٹ میں اون عباس صاحب اچھی بات ہے نا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر اون عباس صاحب سنسیئر ہوتے ایکسٹینڈ کرنے کے لیے یا قانون جو ہے اس میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے, تو یہ تیاری تو 2-3 مہینے پہلے سے کی جانی چاہیے تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ چیئرمین صاحب, باقی جہاں تک رہ گیا آخری بات کروں گا, اب جہاں تک آرڈیننس کی بات ہے تو اس موجودہ گورنمنٹ میں آرڈیننسز تو بہت زیادہ جاری ہوئی ہیں, اور آرڈیننس جاری ہو سکتا ہے, لیکن بعض اس قسم کو یاد ہوگا دیدار حسین شاہ صاحب کے لیے آرڈیننس جاری ہوا تھا, جو کہ چودھری صاحب سے جو ہے کنسلٹیشن نہیں ہوئی تھی, اس کا کیا حال ہوا. میں کہتا ہوں کہ وہ اس قسم کی لیجسلیشن ہونی چاہیے, اس قسم کے کام ہونے چاہیے جہاں پہ کسی پارٹی کی پارٹیزن شپ نظر نہیں آنی چاہیے.
और अब्बास साहब कहते हैं 2.5 दिन रह गए, ये ना होगा कोई 200-250 कॉल अप नोटिस निकल आए, जरा नजर रखनी है आपने। तो ऐसे काम सीधे करें ना, ऐसे काम में किया करें ना फिर। नहीं नहीं, वो आपके लिए कह रहे हैं, उनके तो 2-2.5 हज़ार निकल चुके हैं पहले। सही है, द पॉइंट सर बड़ा लॉजिकल है हाफिज साहब, एंड आई विल बी वेरी क्लियर एंड कैंडिड ऑन दिस वन। पाकिस्तान में हिस्टोरिकली देखें कि आर्मी चीफ्स की एक्सटेंशन भी होती रही है। सवात ऑपरेशन में जनरल कैनी का एक्सटेंशन पीपल्स पार्टी ने किया था, सबने एंडोर्स किया था कि जी सवात ऑपरेशन चल रहा है। जनरल बाजवा साहब का एक्सटेंशन हुई थी, अफगानिस्तान का इशू चल रहा था, सब एग्रीड थे कि यार फेयर इनफ, इस वक्त सिचुएशन अफगानिस्तान वाली साइड पे बहुत क्रिटिकल है, चेंज ऑफ कमांड नहीं हो सकती। इसीलिए इसका रैशनल भी बड़ा क्लैरिफाइड है कि एक अकाउंटेबिलिटी का आपका इंस्टीट्यूशन है, उसमें केसेस चल रहे हैं एक शख्स के ऊपर जो कि ऑलमोस्ट अपने एंड रिजल्ट की तरफ पहुंचने वाली है। चाहे मैडम शाइस्ता कुछ भी कहें, लेकिन वो 7 अरब की टीटियां और 25 अरब जो 20 अकाउंट्स में जाली अकाउंट्स में रमजान शुगर मिल के टी बॉयज और पीएनस के अकाउंट में जो पैसे जमा हुए हैं वो वादा माफ गवाह मौजूद है। इस टाइम पे आके आप चीफ चेंज कर दें वहां का नैब का और लगा दें उस शख्स की मर्जी का जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो फिर तो एहतसाब पकड़ गया ना। ये तो आप बात करते थे इदारों को मजबूत करने की, तो फिर इदारों को आप भी शख्सियत का अगर मोहताज होंगे तो फिर क्या फायदा? हाफिज साहब, इदारे मजबूत तब होंगे जब उसमें रैशनल होगा। मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी का चेयरमैन नैब लगा लें तो अगले 1 महीने बाद नैब के ये सारे केसेस जिसमें वो कन्विक्टेड होने वाले हैं वो वहां से निकल के बाहर आ जाएंगे, तो फिर इंसाफ किधर जाएगा? चलें जी, शाइस्ता साहब इंसाफ किधर जाएगा? और सब कहते हैं कि चूंकि केस चल रहे हैं, उनकी मर्जी का बंदा आया तो उनको बेनिफिट और मैं एक चीज और हाफिज साहब, एक मैडम से बात करने से पहले कि ये तो मौका था कि शहबाज शरीफ खुद कह देते कि यार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हाई मॉरल वैली ग्राउंड आपके वजीर जो है वो नाम आने के बाद नहीं छोड़ रहे, आप शहबाज शरीफ साहब वो कहते हैं कि वो छोड़ दे, और नहीं उन्होंने कहाँ छोड़ना जी, चिपक करेंगे। जी शाइस्ता साहबा बात सुने, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं और उनके केसेस चल रहे हैं, एंड यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। और अगर केसेस की बात है तो केसेस तो इमरान न्याजी साहब के ऊपर भी, हेलीकॉप्टर का भी है, और ये इनकी पूरी पार्टी के ऊपर है फॉरेन फंडिंग का। देखें, और बात सुने, खटक साहब का लगाया हुआ बंदा हम सब ने एग्री कर लिया था, तो ऐसा नहीं होता कि शहबाज शरीफ कहेंगे कि मेरा फेवरेट ये है, इसको लगा दो, और न्याजी साहब इतने मासूम हैं कि वो कहेंगे जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। मीनिंगफुल कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मीनिंगफुल कंसल्टेशन मीन्स के कोई फेवरेट बंदा नहीं, आप 2-3 बंदे चुने, हाँ ऐसा बंदा ना चुने जिसको आप दबा सकें या जिसका वीडियो स्कैंडल उसके साथ हो। इनको ऐसा बंदा मिलना मुश्किल है अब, वरना उसने वीडियो आने से पहले एक बात कही थी कि अगर मैं न्याजी साहब के खिलाफ इनकी हुकूमत के बंदों के निकालूं केस तो इनकी हुकूमत गिर पड़ती है, तो फिर वो वीडियोस आ गई। और अब क्या कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, क्या कर, अब कुछ फैसला हुआ है इस पे? लेट्स बी प्रैक्टिकल, अगर लाएंगे तो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। चैलेंज, वो कहते जी आप लाएं, तो हर किसी का राइट है, कोई भी चैलेंज कर सकता है, लेकिन ये कि अभी तक मैंने ड्राफ्ट देखा नहीं। सो प्राइम मिनिस्टर, ये मेरे पे स्केल्स ऊपर की बात है, जो मेरे सुनने में कैबिनेट में इंशाल्लाह ट्यूसडे को कल पेश हो जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज है तो उसके बाद सबको पता चल जाएगा। मुझे एग्जैक्ट इसकी डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो एक जनरल रैशनल है जो कि पूरे सफेयर में पाया जा रहा है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पार्टी का ये पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी तो प्राइम मिनिस्टर साहब कल या परसों इसको बता देंगे। और अकलमंदी आखिरी लफ्ज में आपको ये कहूँगा, पहली बात तो ये है कि जावेद इकबाल साहब की कंसल्ट भी ले लें, क्योंकि जावेद इकबाल साहब, मैं एक लीगल बात और अब्बास साहब मैं ये कहने जा रहा हूँ, चूँकि उनकी कंप्लेंट जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पड़ी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने 4 साल ये भी कर लिए हैं और भी बहुत से काम कर लिए हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि वो इज़्ज़त के साथ घर जाना चाहेंगे। और यहाँ पे आप बंदा लगाएं जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब जैसा, जिनका नाम ही काफ़ी होगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में वाकई अगर करप्शन खत्म करनी है, खुद वो विलिंग है, चेयरमैन नैब साहब एक्सटेंशन के लिए विलिंग है। मेरी उनसे कभी गुफ्तगू नहीं है इस मसले पर, ना मैं उनको जानता हूँ, बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सीट की सैंक्टिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसा किया जाए। अदरवाइज आपका वास्ता नहीं पड़ा ना, आप क्लीन आदमी है ना, आपका लेना ना देना, हाथ साफ है आपका, किधर मैं जनरली वैसे कह रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी के जो बेसिक फीचर्स हैं वो ही डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर आप ऑपोजिशन अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त खुद कन्विक्टेड होने जा रहे हैं उससे मशवरा करें। ये आपका पॉइंट है। और अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, शहादत ऐवान साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।